مدینہ ہے، نور دونوں مکہ مدینہ ہے، اور راحت قلب و جا مدینہ ہے، راحت قلب و جا مدینہ ہے، راحت قلب و جا مدینہ ہے، زینت دو جہاں مدینہ ہے، زینت دو جہاں مدینہ ہے، قوت خستہ جا مدینہ ہے، قوت خستہ جا مدینہ ہے، قوت خستہ جا مدینہ ہے، مامن سجا مدینہ ہے، مامن سجا مدینہ ہے، اور لطف شاہ زماں ہوا مجھ پہ، لطف شاہ زماں ہوا مجھ پہ، لطف شاہ زماں ہوا مجھ پہ، میرے ورد زبا مدینہ ہے، میرے ورد زبا مدینہ ہے، اپنی اوقات تو دیکھ اے برہان، اپنی اوقات تو دیکھ اے برہان، تو کہاں اور کہاں مدینہ ہے، تو کہاں اور کہاں مدینہ ہے، عظمتوں کا نشان مدینہ ہے، فخر کون مکان مدینہ ہے۔ شاہ مردہ شیر ازداں قوت پروردگار، شاہ مردہ شیر ازداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف فتار، ہزار بار مشویم دہیز مشکو گلاب، ہزار بار مشویم دہیز مشکو گلاب، ہنوز نامے کی گفتن کمال بے ادبیس، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت آیات من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ الشاہ امام احمد رضا خان فاضل نبی علیہ الرحمت والرضوان، بارگاہ مصطفیٰ میں یوں نغمہ سرا ہوتے ہیں، کون اعلیٰ حضرت؟ ہاں ہاں وہی اعلیٰ حضرت کہ جس کے بارے میں اکثر و بیشتر یہ کہہ دیا کرتا ہوں، بلکہ یوں سمجھیے کہ میں اپنی تقریر کا عنوان اس شعر کے ساتھ کیا کرتا ہوں، مانا عرب میں تجھے یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانا عرب میں تجھے یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت، کون اعلیٰ حضرت؟ ہاں ہاں وہی اعلیٰ حضرت کہ چیخ پڑے چوٹی کے وہبڑے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، چیخ پڑے چوٹی کے وہبڑے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر حق کیا خوب چلایا، حامی سنت اعلیٰ حضرت، وہی اعلیٰ حضرت بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں، عرش حق مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حسب عزت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، اور اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کم ممکن ہو پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کم ممکن ہو پھر مدحت رسول اللہ کی، شادی کرو تو ایسی کرو سادگی کے ساتھ، شادی کرو تو ایسی کرو سادگی کے ساتھ، جیسے علی نے عقد کیا فاطمہ کے ساتھ، جیسے علی کا عقد ہوا فاطمہ کے ساتھ، اور سراج بھائی کا کہنا ہے کہ بیٹی ہماری جائے گی مہر وفا کے ساتھ ساتھ، بیٹی ہماری جائے گی مہر وفا کے ساتھ ساتھ، لے کر دعائے مصطفیٰ زہرا کی
की चादर साथ साथ लेकर दो आए मुस्तफा ज़हरा की चादर साथ साथ। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैंने बहुत ही मशहूर मारूफ आयत करीमा को पढ़कर अपना मौजू चुना। रब तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा। जो औरतें तुम्हें भा जाए, जो औरतें तुम्हें पसंद आए, अच्छी लगे, तुम उनसे एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार शादियां करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अन निकाहु बि सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह करना मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत से एराज़ किया, जिसने मेरी सुन्नत से इनकार किया, वो मुझमें से नहीं है। हज़रात आइए देखिए, ये शादी का वक्त चल रहा है, ये महीना जो नवंबर है, इसमें अक्सर जगहों पे शादियां हो रही है और बिलखुसूस मुसलमान अपने बच्चे और बच्चियों की शादियां करता हुआ नजर आ रहा है। आज ये शादी है क्या, ये अमल है क्या? सबसे पहले जन्नती अमल जो हुआ है दुनिया में, जो सबसे पहले जन्नती अमल में आया है, वो निकाह का मामला है। निकाह का मामला कब हुआ? जब अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन और आसमान को पैदा कर दिया, चाँद और सूरज को पैदा कर दिया, जन्नत और दोज़ख को पैदा कर दिया, चरिंद और परिंद को पैदा कर दिया, बहरे हसर को पैदा कर दिया, हजरत को पैदा कर दिया, सारी कायनात को पैदा किया। और पैदा करने के बाद रब्बुल कदीर ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। ऐ फरिश्तों, मैं अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ, ऐ फरिश्तों, मैं अपना नाइब बनाना चाहता हूँ। जब रब्बुल कदीर ने ये इज़हार फरमाया, फरिश्तों ने कहा परवरदिगार आलम को तस्बीह के लिए हम काफी है, तेरी इबादत के लिए हम काफी है, तेरी रियाजत के लिए हम काफी है। ऐ परवरदिगार आलम, जिस इंसान के बनाने की तो बात कर रहा है, जिस इंसान के पैदा करने की तो बात कर रहा है, जिस इंसान के खलीफा बनाने की तो बात कर रहा है, ऐ परवरदिगार, वो दुनिया में जाएंगे फसाद बर्पा करेंगे, वो दुनिया में जाएंगे लड़ाइयाँ करेंगे, वो दुनिया में जाएंगे खुरसियाँ करेंगे। रब्बुल कदीर फरमाता है इन्नी अअलमु मा ला तालमून, बेशक जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते हो। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा छोटा कि सारी कायनात को पैदा मैंने कर दिया है। मेरे रब में मेरा नाम लेने वाला भी कोई होना चाहिए, और जिस पैगंबर के सदक़े में मैंने सारी कायनात को पैदा किया है, उस पैगंबर का जिक्र भी होना चाहिए। अल्लाह तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को तस्वीर को बनाने के लिए जमीन से मिट्टी को मंगाया, और मिट्टी बनाने के बाद में आदम का टुकड़ा तैयार किया, और आदम का टुकड़ा जब तैयार कर दिया, अल्लाह ने उसमें रूह डाला, और रूह को डालने के बाद अपने जिस्म के साथ आदम अलैहिस्सलाम को तैयार कर दिया। रूह फूट गई है, रूह मैसर हो गया। आदम अलैहिस्सलाम को तस्लीम है, जन्नत के अंदर है। मेरे मिल्लत के नौजवान जन्नत के महलात में घूम रहे हैं, जन्नत के कल के बगीचों में घूम रहे हैं। एक दिन का जमाना गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, ताकि आदम अलैहिस्सलाम को तस्लीम तन्हाई महसूस करते हैं, आदम अलैहिस्सलाम को तस्लीम है, अकेलापन महसूस करते हैं, कुछ गुम सुन नजर आए। रब्बुल कदीर जानता है, फिर भी पूछता है आदम ये बताओ मामला क्या है, वजह क्या है? तुम्हारे तुम देख रहा हो गंभीर हो, मैं देख रहा हो कि तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो। हज़रत आदम ने कहा परवरदिगार आलम, आदम इस वजह से मैं परेशान हूँ, इस जन्नत के अंदर सब कुछ मौजूद है। परवरदिगार आलम, अकेलापन महसूस कर रहा हूँ, परवरदिगार चाहता हूँ कोई मेरा हमसफर हो जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया ठीक है आदम, कोई घबराने की बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम को नींद आती है, और जब आदम अलैहिस्सलाम को नींद आती है, अल्लाह ताला ने आपके पाए पिछले से हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पैदा फरमाया, और हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब पैदा हो गई और आदम अलैहिस्सलाम की आंख खुलती है, तो क्या देखते हैं सामने एक जमील औरत खड़ी है, एक ब्यूटीफुल औरत खड़ी हुई है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आदम अलैहिस्सलाम ने सोचा ये तो मेरे लिए ही पैदा की गई है, मेरे लिए ही अल्लाह ने बनाया होगा। इस वजह से आदम अलैहिस्सलाम को तस्लीम ने सोचा लाओ मैं कुर्बत हासिल करो, लाओ मैं छो उनसे करीब हो जाऊं। जब इसे सोचा और पढ़ने लिखने के करीब थे कि अल्लाह ने फरमाया है आदम तुम्हारे ही मैंने पैदा किया है, लेकिन है आदम सुनो ऐसे नहीं, बल्कि तुम मेहर अदा करो, मेहर अदा करो। और परवरदिगार आलम, मेहर क्या चीज होती है? मेहर ये होता है कि आए मेरे बंदा आदम, जब अपने कोई इंसान का बंदा जब दुनिया में होगा और निकाह का पैगाम भेजेगा, और जब किसी लड़की से शादी करना चाहेगा, तो जहाँ तमाम रसूल होंगे वही सबसे पहला रस्म यही होगा कि मेहर अदा किया जाए। मेहर के बगैर निकाह नहीं हो सकता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया परवरदिगार आलम, यहाँ कोई दौलत तो है नहीं, जेवर तो है नहीं, पैसे तो है नहीं, इब्राहिम बनाने तो है नहीं, परवरदिगार आलम में क्या दो? अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ आदम सुनो सुनो, मेरे पैगंबर के ऊपर
21 मरतबा दरूद पाक पढ़ने का रवायत नहीं आता है। एक रिवायत में आता है 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ो, एक रिवायत में आता है 75 मरतबा दरूद पाक पढ़ने की ही महर है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आदम फरमाते हैं परवरदिगार के दरूद को ऊपर पढ़ना है। रब फरमाता है मेरे महबूब के ऊपर दरूद पढ़ना है, मेरे पैगंबर के ऊपर दरूद पढ़ना है। रब कदीम ने ये फरमाया, आदम फरमाते हैं आदम परवरदिगार का महबूब कौन है, मेरा पैगंबर कौन है। आदम अलैहिस्सलाम से कहा रब कदीम फरमाता है आदम क्या जानना चाहते हो, ऐ आदम मेरा महबूब वो है जिस महबूब के सदके में मैंने जमीन आसमान को पैदा किया है, जिस महबूब के सदके में सारी कायनात को पैदा किया है। ऐ आदम अगर तुमको पैदा करना मकसद है तो जो तुमको मैंने पैदा किया है अपने महबूब के सदके में पैदा किया है। अगर मैं अपने महबूब को पैदा ना करना चाहता तो दुनिया में किसी चीज को पैदा ही नहीं करता। मैंने जिन्नात और इंसान को सारी से अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना के मेरे मिल्लत के नौजवानों, पता चला कि आदम अलैहिस्सलाम को तस्लीम में दरूद पाक पढ़ा। दरूद पाक पढ़ने के बाद महर अदा किया। महर अदा करने के बाद हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से क़ुर्बत हासिल करीब होते हैं। अब तारीख बताती है, रिवायत का ज़्यादा तफसील गुफ्तगू में नहीं करना चाहता हूँ। बताने का माहसल मकसद ये है, आज हमारा मुआशरा जिस चीज को जल्दी करना चाहिए आज उसमें ताख़ीर करता हुआ नजर आ रहा है, और जिसमें ताख़ीर करनी चाहिए उसमें जल्दी करता हुआ नजर आ रहा है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जो लड़का बालिग हो जाए उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निकाह को आसान कर दो और ज़िना को मुश्किल कर दो। लेकिन आज का हाल ये हो गया, निकाह आम से आम तर मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है, और निकाह ज़िना जो है वो आम से आम तर होता जा रहा है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, निकाह एक कल्बी सुकून के लिए होता है, निकाह एक इंसान को लज़्ज़त हासिल करने के लिए होता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज हमारे यहाँ शादियाँ होती है। इलाही की मुबारकबाद है सिराज भाई, इलाही की मुबारकबाद है इनके बेटे मेराज और फारूक भाई, जो ऐसे मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा करने के लिए इस अजीम शान प्रोग्राम का इनेकाद किया, उलमाए किराम को इकट्ठा किया। मेरे मिल्लत के नौजवानों, शहजादे मदीना औलिया को मदऊ किया, वो यहाँ पे आ रहे हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि ये उलमा से मज़ीद रहते हैं, ये उलमा से मोहब्बतें करते हैं, इसकी वजह से आज ये बरकतें इनको मिलती हुई नजर आ रही है। वरना आज तो हाल ये हो गया है, चंद पैसे आते क्या है उलमा को अपना मौका समझते हुए नजर आते हैं। आज हमारी कौम के लोगों का हाल ये है कि ऐसे मौके पर आज हमारा नौजवान, आज हमारे समाज के लोग अपने बेटे के शादियों के मौके पर मिलाद करवाते हैं सिर्फ एक साल में अदा करने के लिए। वो लगातार देखा ही जाता है, रात रात भर डीजे बजते हैं, रात रात भर गाने बजते हैं, और उसके बाद कार को जब देखा जाता है उसमें लिखा होता है निकाहों में सूरत फमल का सूरत पैसा नहीं है, निकाह देना मेरी सुन्नत है। और जब इस हदीस को मैं पढ़ता हूँ और लोगों के रवैये को देखता हूँ तो हमें पता ये चलता है कि अल्लाह के नबी की सुन्नत को अदा करने के लिए नहीं, लेकिन ख्वाहिशात नफसानी को पूरा करने के लिए और शैतान को राजी करने के लिए ये सारे अमल करते हुए नजर आ रहे हैं। आज हाल ये हो गया है, आज हमारे समाज में इतनी बुराइयां फैली चली जा रही है। आज लड़का बालिग हो गया है, माँ बाप सोचते हैं कहीं नौकरी हो जाए उसके बाद में तब निकाह करो, लड़का कमा के देने लगे तब निकाह करो। उसके बाद लड़की वाले सोचते हैं कोई लड़का ऐसा मिल जाए जो सऊदीया में रहता हो, बैंक बैलेंस हो, 4 व्हीलर हो। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज शादियां लोग करते हैं दौलत को देख करके, लोग शादियां करते हैं सरबत को देख करके, लोग शादियां करते हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे नबी ने फरमाया था जब तुम निकाह करने का इरादा करो, जब तुम शादी करने का इरादा करो तो 4 वजहों से शादियां क्या करो। एक तो दीनदारी को देखा करो, एक तो ये है कि तालीम को देखा करो, हुस्न जमाल को देखा करो, बिरादरी को देखा करो। मेरे नबी ने फरमाया है। लेकिन आज हाल ये होता है, लड़का जब बालिग हो गया तो अब लड़का वाला एक घर नहीं बल्कि 10 घर नहीं 50 घर जाते हैं इस वजह से ताकि देखो कौन मालदार घराना मिल रहा है, कौन 2 व्हीलर 4 व्हीलर दे सकता है। और लड़की वाले सोचते हैं कौन लड़की के लिए लड़का तलाश करते हैं तो सोचते हैं कौन ऐसा लड़का मिल जाए जो बैंक बैलेंस वाला हो, बेहतरीन मकान हो। उसके बाद ना हम जिम्मेदारी देते हैं, ना हम कुरान के ना और चीजें देखते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज का जो माहौल चल रहा है, आज का जो माहौल चल रहा है, ऐसे माहौल में जब कहीं भी रिश्ता
रिश्ता देखने के लिए जाओ, दौलत बाद में देखो, ईमानदारी पहले देखो, अकीदा पहले देखो। तो किसी लड़के का निकाह के लिए किसी लड़के के घर पे पैगाम लेकर जाओ, या लड़के वाले किसी लड़के के घर पे निकाह के लिए जाए, पैगाम लेकर जाए, तो सबसे पहले देखें कि अकीदा उसका क्या है, इधर का है या उधर का है, आला हज़रत का मानने वाला है या और किसी और का मानने वाला है। मेरे मिलत के नौजवानों, अब आप सोच रहे होंगे अकीदा की जरूरत क्या है। अकीदा की जरूरत ऐसे ही है जैसे नमक के बगैर खाना नहीं खाया जा सकता है, ऐसे अकीदा के बगैर किसी मोमिन या मोमिना का निकाह भी नहीं हो सकता है। मेरे मिलत के नौजवानों, आओ देखो, आज हमें देखना चाहिए। आज हम जाते हैं शादी करने के लिए, निकाह करने के लिए, तो हम देखते हैं कि दौलत हो ही रही है, लेकिन सबसे पहले जब आप देखो उसमें होना क्या चाहिए। जब कभी लड़का बालिग हो जाए तो उसके लिए जरूरी ये है कि वो जाए, जब लड़की के घर लड़की को देखने के लिए, तो पूछे कुरान की तिलावत करती है या नहीं करती है, नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, आकाम शरिया पे अमल करती है कि नहीं करती है, माँ बाप का काम करती है कि नहीं करती है। और लड़की वाले जब लड़के को देखने के लिए आए तो ये देखे लड़का नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है कि नहीं करता है, माँ बाप का काम करता है कि नहीं करता है, और माँ का हिजाब करता है कि नहीं करता है। इससे फायदा क्या मिलेगा? इससे फायदा ये मिलेगा जब लड़का नमाज पढ़ने वाला होगा, लड़की नमाज पढ़ने वाली होगी, लड़का कुरान की तिलावत करने वाला होगा, लड़की कुरान की तिलावत करने वाली होगी, लड़की लड़का और लड़की माँ बाप के बात करने वाले होंगे, खानदान के फरमाबरदार होंगे, उनकी इज्जत करने वाले होंगे, और माँ का एहतराम करने वाले होंगे। तो याद रखो मेरे मिलत के नौजवानों, वो लड़का अपनी औरत को सही मानों में उसको इज्जत ही देगा, उसकी इज्जत ही करता बन जाएगा, और वो लड़के ने शोहर की भी इज्जत करती हुई। लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरे मिलत के नौजवानों, आओ देखो मैयास का रास्ता। आज लोग कहते हैं बैंक बैलेंस हो जाए, यही होता है कि लड़का कमाने लगे, या नौकरी की तलाश में। मैंने देखा 35 40 साल की उम्र हो गई, लड़के की शादी नहीं हो रही है। उलमा बैठे हैं, इनसे पूछिए कुरान की आयत के लिखिए, हदीस मुस्तफा को देखिए। मेरे नबी फरमाते हैं अगर कोई इंसान बहुत परेशान है और वो उसकी उम्र निकाह करने की हो गई है, अगर वो इस मकाम पे पहुंच जाए, उससे शादी कर दी जाए, तो अगर नबी फरमाते हैं मसला ये है कि अगर लड़के को महर देने की, नाम नफा देने की सलाहियत है, तो बिना किसी चुचला के उसका निकाह कर दो, उसके जरिए से अल्लाह ताला उसे मालदार भी बना देगा। अल्लाह ताला अगर रिस्क में कमी होगी तो अल्लाह ताला इसमें कुशादगी भी फरमा देगा। और नबी फरमाते हैं अगर कोई इंसान, कोई आदमी दौलत की वजह से शादी में ताखिर कर रहा है, दौलत मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, अगर वो मालदार है तो उसकी वजह से अल्लाह ताला उसे गरीब फरमा देगा, गरीब कर देगा। हाँ बैठे हो आप, किसी लड़की गरीब लड़की को लेकर के आओ अपने घर पे और ला करके उसके बाद में रात के 12 बजे अपने घर में अपनी नई नवेली बहू को बिठा करके और बाप को बिठा करके, शौहर को बिठा करके रात के तन्हाई में रब्बे कदीर की बारगाह में अरीज़ा पेश करो, दुआ करो, ऐ परवरदिगार आलम तेरे नबी के फरमान के मुताबिक, तेरे कौल के फरमान के मुताबिक मैंने गरीब लड़की को ब्याह कराए लाया है इस वजह से, ताकि अल्लाह ताला मेरी गुर्बत को माफ़ कर दे। ऐ परवरदिगार, अगर तेरे रज़ा के लिए और तेरे महबूब के फरमान पे अमल करते हुए मैंने ये तरीक़ा बनाया है, तो ऐ परवरदिगार मेरी दुआ को कबूल फरमा। कसम खुदा की आपका हाथ नीचे भी नहीं होने पाएगा, अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाएगा और बातें जाने से टकराती हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपके घर से असबाब मुहैया फरमा देगा। लेकिन जिस जो रब देने वाला है, आज हमारा उस पर एतमाद नहीं है, और जो खुद भीख मंगा है उस भीख मंगे पे हम एतमाद करते हैं कि नहीं है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज तो हाल अजीब तरह चल रहा है हमारे मुआशरे में। निकाह पर लिखवाते, निकाहों में सुन्नती फमन नबीवा सुन्नती फरीसा मेरी, निकाह करना मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरे सुन्नत से इराज किया वो मुझे से निकाह के मुझ में से नहीं है। डीजे बजते हैं, गाने बजते हैं, मौलाना लोग मना करते हैं, उसके बावजूद कहता है कि मैं खर्च कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी कमी हमारे यहाँ क्या हो गया है, हमारे उलमा में माजरत के साथ उलमाए कराम बैठे हुए, मैं माजरत चाहता हूँ, मेरी बात अगर हकीकत पे है तो ताकि तायद करिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसकी इस्लाह करिए। आज हमारे उलमा भी कम नहीं है,
ڈی جے بجوائیں گے تو وہ لگا دیں گے کہ اگر تم ڈی جے بجوائے ہو تو 11,000 روپے دے دو، 5,000 روپے دے دو۔ بڑے ارے پہلی بات جب ہم غلط کر رہے ہیں مسئلہ ہی نہیں ہے، علماء بیٹھے فتاوی کتابوں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، جو یہ چیزیں کفارے کے طور میں 11,000 5,000 21,000 یا تو ناجائز و حرام ہے، جتنا لیا گیا ہے اس کو واپس کیا جائے، اس سے گناہ بڑھتے ہیں گھٹتے نہیں ہیں۔ آدمی سوچتا